Hello everyone, welcome to all of you. Sri Education Hub online classes of chemistry. Today in our class we started trihalogen derivatives in alkyl halide and aryl halide. Trihalogen derivatives are write in the form of CHX3, means compound they have 3 halogen atoms are known as trihalogen derivatives. In our this lesson we study trihalogen derivatives on which 3 halogen atoms are attached on a single carbon atom. In this series we study generally 2 compounds. First is our CHCl3 means chloroform, and second is CHI3 means iodoform. These compounds are also known as haloform compounds. They have formula CHX3 are known as haloforms. Haloforms compounds are prepared by the haloform reaction. Haloform reaction is given by the compound. They have structure like CH3 CHROH means alcoholic compound, or here ketonic compound or carbonyl compound. Clear? Means haloform reaction is shown by the alcoholic compound. They have a structure like this compound, and carbonyl compound they have a structure like this. Clear? Haloform reaction is completed in following steps. These are as follows. First step is our alcoholic compound react with X2 and converts into carbonyl compound and gives 2HX. अब इसमें हमें जो ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास अल्कोहलिक कंपाउंड है, क्लियर, तो उस कंडीशन में रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट होगी. इस स्टेप से हमें स्टार्ट करना है, और यहाँ पर जो बनने वाला कंपाउंड होगा वो हमारा कैसा होगा, कार्बोनिल कंपाउंड होगा. और अगर हमारे पास में हमने कार्बोनिल कंपाउंड का यूज़ किया है तो उस कंडीशन में सेकेंड स्टेप से हमारी रिएक्शन स्टार्ट होगी. ठीक है. इन नेक्स्ट carbonyl compound react with again halogen and converts into trihalogen derivatives of carbonyl compound. Clear? This trihalogen derivatives of carbonyl compound react with KOH and gives haloform. This reaction is written in the form of, when we combine all these 3 steps, then we can write this reaction like this. Means CH3CHOHR alcoholic compound plus 4X2, here 1 and 3, total 4X2 plus 6KOH molecule react and gives haloform, and potassium salt of carboxylic acid plus KX plus H2O. Clear? Then we study our first compound in trihalogen derivatives is trichloromethane, or it is also known as chloroform. Chloroform CHCl3. It can be prepared by the following method. First of them is its laboratory method. In laboratory it can be prepared with the help of ethyl alcohol or acetone. Means ethyl alcohol compound they have OH, and acetone means compound they have CO group, plus CaOCl2 calcium oxychloride means this is bleaching powder and H2O. This reaction is completed in following steps. First step is our bleaching powder react with H2O and form calcium hydroxide and gives nascent chlorine. This nascent chlorine react with our ethyl alcohol and form aldehyde, means carbonyl compound. Then in next step, aldehyde, here acetaldehyde, react with again nascent chlorine and gives chlorale. Chlorale is the trichloro derivative of carbonyl compound or acetaldehyde. Clear?
Then in next step, chloral react with calcium hydroxide that is prepared in our first step and gives chloroform and also gives calcium formate. Clear? Then second method of preparation of halofoam is from NaOCl, means chloroform can be prepared with the help of sodium oxychloride, NaOCl. It is completed in following 4 steps. In this reaction, sodium hydroxide react with chlorine and form NaOCl. This is the reagent that gives nascent chlorine for the oxidation of alcohol. Then it gives NaCl plus H2O. In second step, our alcoholic compound react with NaOCl and gives carbonyl compound. Alcoholic compound converts into carbonyl compound. Clear? Then third step is our carbonyl compound again react with NaOCl, sodium oxychloride, and gives trichloro derivative of carbonyl compound and form NaOH, sodium hydroxide. This trichloro derivative of carbonyl compound again react with trichloro derivative of carbonyl compound again react with NaOCl and gives CHCl3, means chloroform. Then next method is with the help of methane. This reaction is known as chlorination, means when methane react with chlorine, this reaction is known as chlorination. Methane react with chlorine in the presence of sunlight and it gives us chloroform. This reaction is completed as follows. First of them, one molecule of chlorine react with CH4 and gives CH3Cl, means methyl chloride, and HCl. CH3Cl again react with chlorine and gives CH2Cl2, dichloromethane. This one again react with chlorine and gives us CHCl3, means chloroform. And this reaction is important for the preparation of tetrachloromethane or carbon tetrachloride. If it again react with Cl2, then it gives us CCl4. It may give us CCl4. Clear? The next reaction is from hydrated chloral. When sodium hydroxide react with chloral, then it gives us CHCl3, means chloroform. And if hydrated chloral means CCl3CHO plus H2O, then form hydrated chloral. React with sodium hydroxide and gives chloroform plus sodium salt of carboxylic acid. Clear? Then इसके बाद में next from ethanol. This reaction we study in haloform reaction. या हम ये कहें कि हमने जो लेबोरेटरी मेथड स्टडी किया था उसके अंदर हमने इसको किया था. तो सेम प्रोसीजर होगा, वही हेलोफॉर्म रिएक्शन यहाँ पर प्रोसीड होगी. इसी तरह से एसीटोन मीन्स जब एल्कोहल फर्स्टली नेसेंट क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करने के बाद में कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट होता है, तो यहाँ पर वो सेकेंड स्टेप से हमारी रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी. क्लियर? देन उसके बाद में नेक्स्ट है फ्रॉम CCl4 मीन्स कार्बन टेट्राक्लोराइड.
when carbon tetrachloride CCl4 react with Fe/H2O, means Fe/H2O, they gives us nascent hydrogen that react with CCl4, and this procedure is known as partial reduction of carbon tetrachloride, and we gets chloroform. Clear? Then after physical properties of chloroform is colorless and its boiling point is 334 Kelvin, and it is less soluble in water. Clear? देन इसके बाद में नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म की केमिकल प्रॉपर्टीज को। फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हम देखें इफेक्ट ऑफ सनलाइट का क्या इफेक्ट होगा। तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्लोरोफॉर्म ऑक्सीडाइज्ड, क्लोरोफॉर्म का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा सनलाइट और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और इससे जो हमें मिलेगा एक पॉइजनस गैस फोस्जीन COCl2, जिसको हम क्या कहते हैं, कार्बोनिल क्लोराइड भी कहते हैं। क्लियर? ये हमें मिलेगी। यहाँ एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो आगे हम इसके स्टोरेज से रिलेटेड बात करेंगे कि क्लोरोफॉर्म का यूज़ है वो सेफ़ क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें फोस्जीन बनती है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन, और क्लोरोफॉर्म को स्टोर करते टाइम हमें किस तरह की प्रिकॉशंस का हमें मेज़र करना है, किस तरह की प्रिकॉशंस हमें रखनी है, तो वो सारी चीज़ें हम आगे क्वेश्चन की फॉर्म में यहाँ पर देखेंगे। तो रिएक्शन के अंदर अगर हम देखें CHCl3 मीन्स क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विद O2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इट गिव्स अस COCl2 मीन्स दिस इज फोस्जीन, इट गिव्स अस फोस्जीन। तो यहाँ पर ये जो फोस्जीन गैस बनती है ये काफ़ी पॉइजनस होती है। क्लियर? जिसके कारण से क्लोरोफॉर्म का जो यूज़ है वो सेफ नहीं होता है। ठीक है, अब इसका स्टोरेज करते टाइम या इसको स्टोर करते टाइम हमें किन किन चीज़ों का प्रिकॉशंस रखना है और क्यों रखना है वो भी इजीली समझ में आ जाएगा। हमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो जिस बोतल में क्लोरोफॉर्म भर रहे हैं वो बोतल हमें एकदम फुल भरना है, ताकि उसके अंदर ऑक्सीजन गैस रिमेनिंग ना रहे, उसमें कोई भी ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो। देन उसके बाद में हमें ध्यान रखना है कि इसको हमें कलर्ड बोतल में फिल करना है, ताकि सनलाइट जो है वो इसके ऊपर स्ट्राइक ना करे, और अगर कुछ थोड़ी बहुत अमाउंट में ऑक्सीजन वहाँ प्रेजेंट है भी तो वो सनलाइट के एब्सेंस में इसके साथ में इतना इजीली रिएक्ट नहीं करेगी। क्लियर? देन इसमें सबसे मेन जो थर्ड हमें प्रिकॉशंस रखना है वो है क्लोरोफॉर्म को जब हम स्टोर करते हैं तो इसके अंदर हमें 1% एथिल एल्कोहल को ऐड करना है, हमें 1% एथिल एल्कोहल को ऐड करना है। जो क्या होगा कि अगर किसी रीज़न से स्टोर्ड बोतल के अंदर जिसमें हमने क्लोरोफॉर्म को स्टोर किया है उस बोतल के अंदर अगर किसी रीज़न से फोस्जीन गैस बन भी गई है तो ये एथिल एल्कोहल उसके साथ में रिएक्ट करके डाई एथिल कार्बोनेट बना देगा, जो पॉइजनस नहीं होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन अराइज होते हैं कि इसको स्टोरेज में हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। देन उसके बाद में हम देखें इसके अंदर की जो डाई एथिल कार्बोनेट का फॉर्मेशन है वो किस तरह से होता है। सपोज कि यहाँ क्लोरोफॉर्म की जिस बोतल में हमने क्लोरोफॉर्म को स्टोर किया हुआ था उस बोतल के अंदर फोस्जीन गैस का फॉर्मेशन हो गया, तो यहाँ पर जो एथिल एल्कोहल प्रेजेंट है वो एथिल एल्कोहल इससे रिएक्ट करेगा और ये बनाएगा डाई एथिल कार्बोनेट। एकदम सिंपल सी रिएक्शन है। इस रिएक्शन के अंदर थोड़ा सा इस तरह से करके हम इसको अगर लिखते हैं तो यहाँ पर ये HCl जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा और क्या बनेगा, डाईएथिल कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। देन उसके बाद में हम नेक्स्ट इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है उसको स्टडी करें, दैट इज हाइड्रोलिसिस। एक्वस KOH या NaOH की प्रेजेंस में क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोलिसिस होगा और फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, फॉर्मिक एसिड मिलेगा। बट यहाँ फॉर्मिक एसिड मिलने से पहले बीच में एक ये अनस्टेबल कंपाउंड का भी फॉर्मेशन होता है। जब रिएक्शन के अंदर यहाँ पर 3 KCl जो है वो एलिमिनेट होंगे तो हमारे पास में एक अनस्टेबल कंपाउंड बनेगा जिसमें एक ही कार्बन पर 3 OH प्रेजेंट हैं। एंड वी नो दैट वेरी वेल, इफ more than 1 OH group are present at 1 carbon atom, then such type of compounds are unstable and they easily eliminate H2O molecule
they easily eliminate H2O molecule and it converts into formic acid. क्लियर? देन उसके बाद में नेक्स्ट है इसमें रिएक्शन रिडक्शन। रिडक्शन के अंदर हमें देखना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जिंक प्लस HCl की प्रेजेंस में अगर हम इसका रिडक्शन करवाते हैं, दिस रिडक्शन इज नोन एज पार्शियल रिडक्शन। पार्शियल रिडक्शन है, इट मीन्स यहाँ पर दो हाइड्रोजन एटम यहाँ पर यूज होंगे, दो नेसेंट हाइड्रोजन यहाँ पर यूज होंगे जो क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, डाइक्लोरो मीथेन बनाएंगे। ठीक है, या हम इसको मेथिलीडिन क्लोराइड भी कह सकते हैं। देन उसके बाद में अगर हम इसका कंप्लीट रिडक्शन देखें तो Zn प्लस H2O, यहाँ था Zn प्लस HCl, यहाँ होगा Zn प्लस H2O के साथ में ये रिएक्ट करेगा और यहाँ टोटल हमें जो है वो 6 नेसेंट हाइड्रोजन या हम ये कहें कि 6 हाइड्रोजन एटम हमें मिलेंगे और CHCl3 इसके तीनों के तीनों क्लोरीन एटम जो है वो हाइड्रोजन इन 6 हाइड्रोजन एटम्स के साथ में रिएक्ट करके क्या बना देंगे, 3 HCl के मॉलिक्यूल बनाएंगे और क्या बनेगा, मीथेन CH4 का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर? देन इसके बाद में नेक्स्ट इसकी जो रिएक्शन है दैट इज रिएक्ट विद एसीटोन। रिएक्ट विद एसीटोन, एसीटोन के साथ में रिएक्शन। क्लोरोफॉर्म के अंदर अगर हम देखें यहाँ पर CCl3 ये जो पार्ट है, इस पार्ट में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण से इस पार्ट पे क्या आ जाता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन पे क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? अब अगर ये एसीटोन के साथ में रिएक्शन करेगा तो यहाँ एसीटोन में ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। ये रिएक्शन कंप्लीट होगी KOH की प्रेजेंस में और इससे जो कंपाउंड बनेगा वो कंपाउंड क्या होगा, क्लोरीटोन। इजीली यहाँ से हमें दिख रहा है कि ये हाइड्रोजन एटम जो है वो कहाँ अटैच होगा, ऑक्सीजन के साथ, और ये जो पार्ट है, ये पार्ट है हमारा CCl3, ये पार्ट कहाँ अटैच होगा, जहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, मीन्स कार्बन एटम पे। तो इसके अंदर अगर हम देखें हमारे पास में CH3CH3C ये पार्ट था और इसके साथ में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, H यहाँ पर ऐड हो गया और CCl3 कार्बन के साथ में ऐड हो गया और ये जो कंपाउंड बना है ये कंपाउंड क्या कहलाता है, क्लोरीटोन। क्लियर? और क्लोरीटोन जो है इनका हिप्नोटिक इफेक्ट होता है, इसलिए इनका यूज़ जो है वो नींद की दवाइयाँ वगैरह बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। देन उसके बाद में इसकी जो नेक्स्ट रिएक्शन है दैट इज़ रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड HNO3। HNO3 के साथ में रिएक्ट करके क्लोरोफॉर्म से क्या बनेगा, क्लोरोपिक्रीन बनेगा, मीन्स CCl3NO2। यहाँ से जो एलिमिनेशन होगा वो एलिमिनेशन किसका होना है, इसके अंदर ये H और यहाँ से HONO2 ये पार्ट एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ से ये H एलिमिनेट होगा और यहाँ से ये OH एलिमिनेट होगा और क्या बनेगा, CCl3NO2 क्लोरोपिक्रीन। देन उसके बाद में नेक्स्ट है रिएक्ट विद सिल्वर पाउडर। सिल्वर पाउडर के साथ में रिएक्शन, यहाँ जो सिल्वर है इस क्लोरोफॉर्म के 2 मॉलिक्यूल सिल्वर के 6 एटम्स के साथ में रिएक्ट करेंगे। जब हम इनको इनके साथ में हीट करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, एसीटिलीन, या जिसको हम कह सकते हैं एथाइन। ठीक है, और साथ में 6 AgCl सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा। देन उसके बाद में नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है रेमल्टिमान रिएक्शन। रेमल्टिमान रिएक्शन हमारे पास में यहाँ फिनोल है, फिनोल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ KOH और इससे बनने वाला जो कंपाउंड है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड, या हम ये कहें कि पैरा हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड। अब इसके अंदर जो हमारे कंपाउंड बने हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड, इसको हम एक अदर नाम से भी जानते हैं सैलिसैल्डिहाइड। सैलिसैल्डिहाइड के नाम से भी हम इसको जानते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो कई तरह के कंपाउंड्स की प्रिपरेशन में यूज़ होता है। क्लियर? देन इसके बाद में जो हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है कार्बिल एमीन रिएक्शन।
काफ़ी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है कार्बिल एमीन रिएक्शन, बिकॉज दिस रिएक्शन इज यूज इन क्लोरोफॉर्म एज वेल एज एमीन्स. दिस रिएक्शन इज यूज फॉर द टेस्टिंग ऑफ 1 डिग्री NH2 ग्रुप, या हम ये कह सकते हैं कि प्राइमरी एमीन की टेस्टिंग में इसका यूज़ किया जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि इसका क्लोरोफॉर्म की टेस्टिंग में यूज़ किया जाता है. ठीक है. इस रिएक्शन के अंदर आइसोसाइनाइड बनते हैं जिनकी काफ़ी बैड ओड्यूर होती है, और जिसके आइसोसाइनाइड के फॉर्मेशन से ही हमें ये आइडिया मिलता है कि हमारी जो कार्बिल एमीन रिएक्शन है वो कंप्लीट हुई, और जो दिया हुआ जो हमारे पास में रिएक्टेंट था वो हमारे पास में क्या थी, प्राइमरी एमीन थी. इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, आइसोसाइनाइड कहते हैं, बिकॉज आइसोसाइनाइड्स आर फॉर्म्ड एज ए प्रोडक्ट इन दिस रिएक्शन. क्लियर. अब अगर हम इसमें बात करें, हमारे पास में C2H5NH2 ये 1 डिग्री एमीन है, एलिफेटिक एमीन है. क्लोरोफॉर्म के साथ में इसकी रिएक्शन होगी और साथ में यहाँ पर KOH का यूज़ होगा. इनको जब हम हीट करेंगे तो यहाँ पर एथिल आइसोसाइनाइड बनेगा, मीन्स ये आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होगा, जिनकी ओड्यूर काफ़ी बैड होती है, और जिससे हमें आइडेंटिफिकेशन में हेल्प मिलती है कि जो दिया हुआ हमारे पास में सब्सटेंस था वो क्या था, हमारे पास प्राइमरी एमीन थी. क्लियर. और साथ में यहाँ पर 3H2O का फॉर्मेशन होता है. अगर हम यहाँ पर 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन लेते हैं, यानी प्राइमरी एरोमेटिक एमीन का यूज़ करते हैं, तो भी ये सेम प्रोसीजर में उसी तरह से हमारे पास में आइसोसाइनाइड बनेगा. बस डिफरेंस होगा कि एरोमेटिक आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होगा. क्लियर. इस रिएक्शन की मैकेनिज्म की अगर हम स्टडी करें, इस रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है वो 4 स्टेप्स में कंप्लीट होती है. पहला स्टेप इसका होगा, फर्स्ट स्टेप में जो हमने KOH लिया था वो KOH सेल्फ आयोनाइजेशन करेगा. इस स्टेप में क्या होगा, सेल्फ आयोनाइजेशन होगा. फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, सेल्फ आयोनाइजेशन होगा, और K+ और OH- का फॉर्मेशन होगा. देन सेकेंड स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में हमारे पास में जो OH- बना था, ये OH- क्लोरोफॉर्म के मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा, और यहाँ इसमें जो प्रेजेंट हाइड्रोजन है इसके साथ में ये OH किसका फॉर्मेशन कर देगा, H2O का फॉर्मेशन कर देगा, और साथ ही हमारे पास में ट्राईक्लोरो कार्ब एनाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा. थर्ड स्टेप के अंदर जो हमारे पास सेकंड स्टेप में ट्राईक्लोरो कार्ब एनाइन का फॉर्मेशन हुआ था, वो ट्राईक्लोरो कार्ब एनाइन Cl क्लोरीन एटम को, या हम ये कहें क्लोरीन आयन को रिलीज करेगा, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डाइक्लोरो कार्बन फ्री रेडिकल में. यहाँ पर ये क्या बन गया, अब फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया. फोर्थ स्टेप में क्या होगा कि हमारे पास में जो प्राइमरी एमीन है, चाहे वो एलिफेटिक एमीन हो चाहे वो एरोमेटिक एमीन हो, फोर्थ स्टेप के अंदर ये जो प्राइमरी एमीन है, इस प्राइमरी एमीन के ऊपर ये जो फ्री रेडिकल है वो अटैक करेगा, और अटैक करने से नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर प्रेजेंट है वो इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा. नाइट्रोजन ने यहाँ पर लोन पेयर डोनेट किया, इसी कारण नाइट्रोजन पर क्या आएगा, चार्ज पॉजिटिव, और कार्बन ने इलेक्ट्रॉन पेयर गेन किया, इसलिए इस पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा. क्लियर. अब यहाँ जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो डेवलप हुए हैं उनका बेनिफिट क्या होगा कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है, यहाँ इस बॉन्ड पर प्रेशर पड़ेगा और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होना स्टार्ट होगा. ऐसे ही इस बॉन्ड पर प्रेशर पड़ेगा और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होना स्टार्ट होगा. और यहाँ पर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आने से क्या होगा, क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर लेके निकलने की कोशिश करेगा. ठीक है. तो यहाँ से ये क्लोरीन, यहाँ से ये क्लोरीन, यहाँ से ये हाइड्रोजन, यहाँ से ये हाइड्रोजन, ओवरऑल 2 HCl यहाँ से एलिमिनेट होंगे, और यहाँ रिएक्शन जो कंप्लीट होगी वो KOH की प्रेजेंस में होगी. यहाँ जो ये HCl और KOH जो हैं ये आपस में रिएक्शन करके, जो हमने स्टार्टिंग में इसकी रिएक्शन देखी थी कि 3KCl का फॉर्मेशन होता है प्लस 3H2O का फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पर ये KOH और HCl आपस में रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, KCl का फॉर्मेशन करेंगे प्लस H2O का फॉर्मेशन करेंगे. क्लियर. तो ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या बना है, हमारे पास में एल्किल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन हुआ है,
हमारे पास में आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन हुआ है। देन नेक्स्ट इसके बाद में हम आगे देखें तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म जो है काफ़ी हार्मफुल इफ़ेक्ट कॉज करती है। अगर हम ये कहें कि क्लोरोफॉर्म का हमारी बॉडी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होगा, तो ये हमारे सीएनएस को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करेगी, जिससे हमें अनकॉन्शियसनेस यानी बेहोशी जिसको हम बोलते हैं वो आना स्टार्ट हो जाएगी। इससे चक्कर आने जैसी कंडीशंस होगी। साथ ही साथ इससे हेडेक होना स्टार्ट हो जाएगा। और इसके अलावा ये हमारी किडनी और लीवर को भी अफेक्ट करती है। अगर काफ़ी टाइम तक हमारी स्किन जो है अगर इसके कांटेक्ट में रहती है तो हमारी स्किन को भी ये काफ़ी हद तक डैमेज कर देती है। देन इसके यूजेस क्या हैं? जनरली इसका जो यूज़ है वो एज ए लेबोरेटरी रिएजेंट इसका यूज़ किया जाता है, सॉल्वेंट की फॉर्म में इसका यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा जो फ्रियोन्स हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फ्रियोन्स की प्रिपरेशन में इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा पुराने टाइम में, अभी तो यूज़ नहीं हो रहा, लेकिन पुराने टाइम के अंदर इसका यूज़ ऑपरेशन थिएटर में जो ऑपरेशंस वगैरह जो ऑपरेटिव एक्टिविटी करते थे डॉक्टर्स, तो उस टाइम पर इसका यूज़ एज ए एनेस्थीसिया, पेशेंट को अनकॉन्शियस करने के लिए, पेशेंट को हम ये कहें बेहोश करने के लिए इसका यूज़ एज ए एनेस्थीसिया किया जाता था। क्लियर? तो ये हमारा जो टॉपिक है वो क्लोरोफॉर्म का कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे आयोडोफॉर्म, और इसके अलावा हमारा इस लेसन में जो बचा हुआ है आयोडोफॉर्म बचा है। देन उसके बाद में फ्रियोन्स बचे हैं, और फ्रियोन्स के बाद में बिल्कुल छोटे छोटे से दो टॉपिक हैं। एक तो है हमारा BHC, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, एंड लास्ट वन इज अवर DDT। लास्ट हमारा क्या बचा हुआ है इसमें? DDT, पैराडैश डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो हैव ए गुड डे।